میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بلوچستان میں پیپلز پارٹی یا جالوں کی کامیابی نہیں ہے، یہ بلوچستان سب کی کامیابی ہے۔ پرسوں جو ہے پاور شو ہوگا۔ طاقت عوام کے پاس ہے، جمہوریت عوام کے پاس ہے، ہر مسائل کی چابی عوام کے پاس ہے۔ بلوچستان والے باپ کی بات نہیں کر رہا، میں اصلی باپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا آپ کو ایک پریس بریفنگ بھی دیں اور بتا دیں کہ آگے کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہماری باتوں کو غور سے سنیں، اور آپ لوگوں نے بھی جو بھی باتیں کرنی ہوں، دوستوں نے، ساتھیوں نے، ایک ایک کر کے پھر آپ لوگ کرتے جائیں۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایونٹ بلوچستان میں ایک دفعہ پہلے شاید شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہاں منائی گئی تھی یوم تاسیس، خضدار میں رکھا تھا، خضدار میں تھی، اور اس کے بعد ابھی ہم جو ہے کوئٹہ میں اس کو منا رہے ہیں۔ اور ہماری تمام قبائل سے، بلوچ، پشتون، ہزارہ، سیٹلر اور جو بھی یہاں پر رہنے والے قبائل ہیں، ہم سب کو ایک ہی نظر سے، ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم سب سے ہماری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ وہ ہمارے 30 تاریخ کے یوم تاسیس جو ہے ہو رہا ہے، اس میں وہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں، اور اپنے وطن دوستی کا، اپنے جو پیپلز پارٹی دوستی کا وہ ہے، اپنا ثبوت دیں۔ ہم پیپلز پارٹی چونکہ ایک ملک کی پارٹی ہے، مزدوروں کی پارٹی ہے، آریوں کی پارٹی ہے، کسانوں کی پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی ہے، تو میں تمام ان طبقات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو مزدور ہے، حاری ہے، اور دوسرے غریب طبقات ہیں، ان سے بھی میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے جلسے میں شرکت کریں بھرپور طریقے سے۔ اور اس جلسے کی کامیابی تمام اہل بلوچستان کی کامیابی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ یہ جو ہے بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے، چیئرمین بلاول صاحب نے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہم پہ اعتماد کیا، اور ہمیں یوم تاسیس 56واں یوم تاسیس کوئٹہ میں منانے کا شرف۔ کی پارٹی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ کا فلسفہ، اور ابھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے یہ جو ہمیں اعزاز اور یہ جو عزت دی کہ بلوچستان کو اور کوئٹہ میں یہ موقع دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بلوچستان میں پیپلز پارٹی یا جالوں کی کامیابی نہیں ہے، یہ بلوچستان سب کی کامیابی ہے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی بلوچستان کی خدمت کی، اب بھی کی ہے، آگے بھی کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب کا، عدی فریال کا، آصفہ بی بی کا، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بلوچستان کی پیپلز پارٹی کی پورے اپنی آرگنائزیشنز کی طرف سے، کہ وہ یہ ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ پرسوں جو ہے پاور شو ہوگا، اور اس میں میں آپ سب کا ریکویسٹ کرتا ہوں، جیسے کہ نواب صاحب نے کہا ہے، کہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اس شو کو کامیاب کریں گے، اور یہ ہمارے بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کے مستقبل کے لیے بڑا اہم ہے۔ شکریہ جی۔ اور آپ کی یہاں موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ کل سے جو ہم کوئٹہ میں ہیں، یہاں جوش و خروش جو ورکروں میں، پارٹی کے اندر، پارٹی سے باہر لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، شہر کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے، ریسپانس ہمیں اچھا مل رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ 30 تاریخ جو یوم تاسیس ہے، جو صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یہ میں وضاحت کر دوں، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ یوم تاسیس پیپلز پارٹی کا ہے، نہیں، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا ہے، کہ ان کی آزادی کے لیے، ان کی سیاست کے لیے، ان کی حقوق کے لیے جو جنگ شروع کی گئی 30 اکتوبر 1968 میں شروع کی گئی، آج ایک صدی سے اوپر ہو گیا ہے، تو لوگوں میں وہی جذبہ، وہی جوش ہے، اور ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کل بھی عوام کے حقوق کے لیے لڑتی تھی، آج بھی لڑ رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی لڑے گی، اور یہ بھی فخر ہے ہمیں۔ بلا شک آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ہم سے
पाकिस्तान का हर अवाम सवाल पूछ सकता है कि कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब हमने पाकिस्तान के अवाम को मायूस किया हो, या स्पेशली बलूचिस्तान के अवाम को। 2008 आपके सामने है, बहुत दूर की तारीख नहीं है। एक नया फ़लसफ़ा हमने किया, हकूक़ बलूचिस्तान, जो वक्त और हालात ने बलूचों को और पख्तूनों को, बलूचिस्तान के बासियों को इतना परेशान कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि नज़र नहीं आ रहा था वो सियासत क्या करे। मगर उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने बलोच कौम से खड़े होके माफ़ी मांगी थी कि अगर किसी ने आपसे ज़्यादती की है तो हमने की है या किसी और ने की है तो हम माफ़ी मांगते हैं, और जो आपका हक है हम आपको देंगे। और आपने देखा कि वक्त ने साबित किया कि बहुत बड़े स्टेप हमने लिए। उस वक्त मुआशी तौर पे भी जो बलूचिस्तान मफलूज था उसको आगे लाने के लिए, या 18वीं तरमीम में जो हकूक़ दिए छोटे सूबों को, जो नेशनल अवार्ड दिया गया, उसमें जो कुछ भी किया गया मुख्तसर अरसे में हमने किया। ये नहीं कहा कि हमारी अक्सरियत नहीं है, हमें 2/3 मेजॉरिटी अवाम देगा तो हम ज़रूर करेंगे, हमने नहीं देखा। हमने छोटी सी अक्सरियत से जो 128 पर मुश्तमिल थी, इतने बड़े फैसले किए जो आज कोई 2/3 मेजॉरिटी से भी शायद नहीं कर सकेगा। वो उम्मीद है कि कल की परसों की हमारी दावत पे जो हमारी पार्टी ने आज अभी आपके सामने आपको दावत दी है, नवाब साहब ने भी, खलील साहब ने भी, आप सब शरीक करेंगे, और ये हम अच्छा पैगाम पाकिस्तान के अंदर देंगे कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वफाकी पार्टी है और फेडरेशन की पार्टी है, और फेडरेशन को मजबूत करती है। और वही मकसद है कि हम कहते हैं कि छोटे सूबे मजबूत हैं तो वफाक मजबूत है, फेडरेशन मजबूत है। तो वही आज कल परसों का दिन एक तारीखी दिन है। आए सब मिल के इस तारीखी दिन को देखें। वाकई एक वक्त मायूसी का होता है, मगर पीपल्स पार्टी तख्ते पे चढ़ के भी मायूस नहीं होती। हम उम्मीद से हाथ नहीं निकालते। आपने देखा कि अभी रिसेंटली लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुई, जिसमें अवाम ने हमें, बलूचिस्तान के अवाम ने हमें उठाया कि उठे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में इतनी बड़ी कामयाबी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम अवाम ने उठा के उनको फेंक दिया और आपको कामयाबी दी। रोज़ रोज़ माफ़ी नहीं मांगी जाती। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादतियाँ जुल्म न हो। हम इस्टेब्लिशमेंट के ताकत पे फ़ख्र से कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। माजी में जो आपने जिक्र किया कि आप 13-18 में नहीं थे, 13 में भी आपने हमारी सियासत को देखा कि हम जमहूरियत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हमने उस वक्त की हुकूमत, जो एक बाहर से धरना दे के बंदा आया था, बहुत बड़ी खल्क लेके 10-15-20 हज़ार लोगों, वो जमहूरियत को चैलेंज करने आया। तो पीपल्स पार्टी का रोल क्या रहा? क्या हमने अपोजिशन में बराए अपोजिशन की? हमने अपोजिशन बराए जमहूरियत की। हमने जमहूरियत के लिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए और उसकी हुकूमत को बचाया। और हुकूमत को नहीं बचाया, मगर मैं समझता हूँ, सब समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बचाया, पार्लियामेंट को बचाया, पार्लियामेंट के मकसद को हासिल जो हम करते हैं उसको बचाया। शाह साहब, सर ये बताइएगा कि नून लीग ने दावा किया था जब यहाँ आए नवाज शरीफ कि हम बड़ी कामयाबी के साथ यहाँ से जा रहे हैं और बड़ी शमूलियतें भी हुई, तो पीपल्स पार्टी भी क्या ये दावा करती है कि वो कामयाबी से यहाँ से जाएगी, और कौन सी अहम मुतवक्के हैं शमूलियतें? मैं समझता हूँ कि हम किसी बंदों की शमूलियत से कामयाबी नहीं समझते, हम आवाम की अक्सरियत को कामयाबी समझते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि बलूचिस्तान चूँकि यहाँ पे हमेशा मखलूत हुकूमती बनती है, पश्तून जमाते हैं, उनसे पीपल्स पार्टी सीट टू सीट एडजस्टमेंट के हवाले से या जो चेयरमैन आ रहे हैं कोई मुलाकातें करेंगे या नहीं? और साथ ही साथ एक नई जमात भी बनी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनसे भी कोई प्लान है बलूचिस्तान की सतह पर?
मैं समझता हूँ दूसरों को भी टाइम दे, मगर इसका मैं जवाब आपको सिर्फ देता हूँ, उसके बाद दूसरों को भी पूछ लें। शाह साहब एक बात बिल्कुल बताएं सर, जी। आप बलूचिस्तान के लेकिन नवाब सनाउल्लाह के खिलाफ हुकूमत गिराने में जो एक मुंतखब हुकूमत थी, उसमें यहाँ पर आपका एक सेनेटर आकर बैठा और नवाब साहब की हुकूमत को गिराया गया, तो बलूचिस्तान के हकूक की बात तो ना हुई। जनाब, पहली बात तो ये जो आपका सवाल है कि ये मैंने तो नहीं सुना हकीकत है, आज मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मेरी हुकूमत गिराई गई। आप सवाल फिर पूछेंगे, मेहरबानी वही बलूचिस्तान की जो पश्तून बलोच कॉम्पलेक्स जमाते हैं, ये उनकी एक मखलूत हुकूमत बनती है यहाँ पे। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, चूंकि नून लीग ने उनसे मुलाकातें की, एससी टू सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत होती, पीपल्स पार्टी के देखिए, चेयरमैन हम भी आ रहे हैं, मुलाकातें तो देखेंगे। आवाम से करने आए हैं। आवाम से हम 4 दिन इधर हैं, सरीना से निकल के बाहर जाएंगे, सरीना निकल के बाहर लोगों से मिलने जाएंगे, राब्ते करेंगे। हम सरीना में बैठ के सरीना से नहीं जाएंगे, बस। ठीक है सर, ये तो सियासत है, सबसे मिलके भी चलना पड़ता है। ये कोई कहना कि नहीं हम तो अकेले सारा शेर हैं, हम ऐसे दावा नहीं करते। शेर अवाम है, ताकत अवाम के पास है, जमहूरियत अवाम के पास है, हर मसाइल की चाबी अवाम के पास है। हम तो ये समझते हैं, तो इसलिए हमारा कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि हम बगैर बात किए हुए अकेले लड़ेंगे। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। शाह साहब, मरकजी सतह पर PP4 और PP3 के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे थे, क्या वो खत्म हो गए या अभी तक बरकरार है? PP4 क्या है PP4? सरदारी साहब ने खुद कहा था कि मैं तो PP4 का सरबराह हूँ और PP3 का जो सरबराह। अच्छा, मैंने कहा सूबाई असेंबलियों की बात कर रहे हैं। जनाब, हमारी एक पार्टी है, हम हमारी पठान और बलोच की जो है थोड़ा पी मुश्किल से निकल रहा है। एक ही पार्टी है, और वो बलूचिस्तान वाले बाप की बात नहीं कर रहा, मैं असली बाप की बात कर रहा हूँ। बाप हमेशा बड़ा होता है, बात करता है, हम छोटे होते हैं। अभी मैं तो छोटा अब नहीं, मैं तो 72 का हूँ, तो इसलिए हम तो सिर्फ पार्टी का वर्कर ही कहलवा सकते हैं। बड़ी खुशी होगी हम पार्टी का वर्कर, ऐसी कोई मसला नहीं है। ये आप लोगों की मेहरबानियाँ हैं और मेहरबानियाँ करता रहा। शाह साहब, सुने हैं कि चेयरमैन साहब के कोई रिश्ता तय हो रहा था दुबई में, वो हो गया या होने? यार, जिस दिन हुआ उस दिन होगा, हम आपको सबको बताएंगे, मिठाई खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे आपको। और हुक्म करो। सर, सिंध में आपके खिलाफ बड़ा इतिहास बनने जा रहा है, तमाम आपके मुखालफिन को इकट्ठा किया जा रहा है, तो लगता है इत्तेफाक से सिंध लेने की भी तैयारियां हो रही हैं। कब नहीं हुआ है? कब नहीं हुआ है और कब कौन सी एहतियात की बात कर रहे हैं? पिछले 15 साल से हम तो शुक्रगुजार हैं मुस्लिम लीग नून का कि उन लोगों ने MQM से इत्तेहाद किया है, और इंटीरियर सिंध के कराची ओल्ड के लोग जो हैं, जो MQM के सिलसिले में सोच रखते हैं या MQM उनके लिए सोच रखती है, तो नवाज शरीफ की सोच फिर एक मरतबा सामने आ गई। अभी बाकी बातें कल के लिए भी छोड़े। थैंक यू। सर, ये तो सियासत है, सबसे मिलके भी चलना पड़ता है। ये कोई कहना कि नहीं हम तो अकेले सारा शेर हैं, हम ऐसे दावा नहीं करते। शेर अवाम है, ताकत अवाम के पास है, जमहूरियत अवाम के पास है, हर मसाइल की चाबी अवाम के पास है। हम तो ये समझते हैं, तो इसलिए हमारा कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि हम बगैर बात किए हुए अकेले लड़ेंगे। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। शाह साहब, मरकजी सतह पर PP4 और PP3 के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे थे, क्या वो खत्म हो गए या अभी तक बरकरार है? PP4 क्या है PP4? सरदारी साहब ने खुद कहा था कि मैं तो PP4 का सरबराह हूँ और PP3 का जो सरबराह। अच्छा, मैंने कहा सूबाई असेंबलियों की बात कर रहे हैं। जनाब, हमारी एक पार्टी है, हम हमारी पठान और बलोच की जो है थोड़ा पी मुश्किल से निकल रहा है। एक ही पार्टी है, और वो बलूचिस्तान वाले बाप की बात नहीं कर रहा, मैं असली बाप की बात कर रहा हूँ। बाप हमेशा बड़ा होता है, बात करता है, हम छोटे होते हैं।
अभी मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो 72 का हूँ, तो इसलिए हम तो सिर्फ पार्टी का वर्कर ही कहला सकते हैं। बड़ी खुशी होगी हम पार्टी का वर्कर, ऐसी कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों की मेहरबानियाँ हैं और मेहरबानियाँ करता रहा। शाह साहब सुने हैं कि चेयरमैन साहब के कोई रिश्ता तय हो रहा था दुबई में, वो हो गया या होने? यार जिस दिन हुआ मैं उस जिस दिन दिन आपको मिठाई होगा हम आपको सबको बताएंगे, मिठाई खिलाएंगे, बल्कि खाना खिलाएंगे आपको। और हुक्म करो। सर, सिंध में आपके खिलाफ बड़ा इतिहास बनने जा रहा है, तमाम आपके मुखालफिन को इकट्ठा किया जा रहा है, तो लगता है इत्तेफाक से सिंध लेने की भी तैयारियां हो रही हैं। कब नहीं हुआ है, कब नहीं हुआ है और कब कौन सी एहतियात की बात कर रहे हैं? पिछले 15 साल से हम तो शुक्रगुजार हैं मुस्लिम लीग नून का कि उन लोगों ने MQM से इत्तेहाद किया है, और इंटीरियर सिंध के कराची ओल्ड के लोग जो हैं, जो MQM के सिलसिले में सोच रखते हैं या MQM उनके लिए सोच रखती है, तो नवाज शरीफ की सोच फिर एक मरतबा सामने आ गई। अभी बाकी बातें कल के लिए भी छोड़े। थैंक यू।